Good Okay, morning, before sir. starting today's class, let us do a quick revision of where we had left our mainstream studies prior to our first midterm exam. We were discussing about kinematics, this was the main topic, and in kinematics, we were discussing about radial and transverse components of velocity and acceleration. You must be remembering this diagram. It was explained that radial and transverse components of velocity come into play when your object or your particle is moving along some curved path. The curved path need not be a perfect circle, it just has to be non-linear, that's all. And now, if you place an observer at any point who is observing the motion of the particle, so let us say at some instance of time, the particle is at point A. So the observer has a line of action or line of sight like this while observing the particle. And the distance between the observer at O and the current position of the particle at A is denoted by the position vector, and generally we denote it by R vector. And now since the particle is following the curved path, after some time t it will reach another point, let us say B. So now you observe that the observer is viewing the object or the particle with another position vector, let us say r plus del r. So what is essentially happening here is, with every instance of time that is passing, the position vector is changing with respect to time. Now if you take the derivative of the position vector with respect to time, what you get is your velocity. And if you take the derivative of velocity with respect to time, what you get is acceleration. But once again, we have always learned from the beginning in mechanics that every vector, whether that vector is a direction vector r, velocity vector v, acceleration vector a, or even if it is a force vector f, all the vectors can be divided into components, or they can be split into components. Now, what type of components you want to split these vectors is a matter of your personal choice. Most of the times our problems are solved if you take a vector, let us say the velocity vector, some velocity vector is there, and you split the vector along the traditional x and y axis. So you just need an angle either with respect to x or with respect to y. You just need one angular orientation to split it into components. And you conveniently say that yes, I have split my given vector v into two components, the vertical one being v sine theta and the horizontal one being v cos theta. And now you remove the original vector, and now you say that this original vector is equivalent to the sum or the vector sum of these two new vectors. Now what we are doing in this case is,
when you have a curvilinear motion, it is sometimes desired to split the components of your vector not along the traditional x and y axis, but along the radial direction that represents the original direction of viewing of the observer, and a perpendicular direction to the radial direction called as the transverse direction. So basically you can see these radial and transverse direction as your x and y axis only. So if you think about it a little bit deeply, basically this r is representing your x axis, and this transverse direction, which has always to be perpendicular to the radial one, it is basically representing your y axis. The only thing is that your x and y axis in this case are slightly tilted with the perspective of the observer, that's all. But anyway, once we have decided that we will be calling the component as radial and transverse, we went on to do a complete mathematical derivation, and we derived some quantities. Now, what are those quantities? Let us recall them and then remember them once again. So it's very important that you remember the derivation. First of all, derivation तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो independently आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. किसका derivation? ये देखिए, this derivation, derive the components of velocity in transverse and radial directions. Or instead of velocity, they could ask you about acceleration. Derive the components of acceleration in transverse and radial direction in curvilinear motion. सिंपल क्वेश्चन आ सकता है. क्या करना है? जो डेरिवेशन अपन ने क्लास में सीखा था वो बिल्कुल प्रॉपर्ली with the help of a neat sketch you should be able to reproduce. That is what you have to do. So we are not going to repeat the complete derivation, we will simply reproduce the results. ठीक है? वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट होता है, what is that? The radial component of velocity is represented by the rate of change of r with respect to time. And what is this r? This is your r, the radial distance of the particle from the observer. इसको r कहते हैं. तो किस रेट से r में चेंज आ रहा है along the radial direction, along this direction is called as radial velocity, and that is dr by dt. ये पहला इक्वेशन हो गया जो रटना है, यानी कि अब जो न्यूमेरिकल अपन आज करेंगे उसके अंदर आपको ये सोचने का टाइम ही नहीं है कि dr को कैसे डिराइव किया था, dt को कैसे डिराइव किया था. नो, dr जैसे ही वर्ड आपके सामने आया या रेडियल वेलोसिटी जैसे ही सामने आया, dr by dt दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए बिल्कुल. And now the counterpart of radial component is the transverse component. So what is Vt? Vt is given by r multiplied by omega और सिंपली r ओमेगा. इसके कुछ वेरिएंट्स भी हैं जिसको आप कन्वीनियंस के तौर पे चाहे तो याद रख सकते हैं, और यू कैन चूज टू रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला. dr by dt is also represented by r dot. ये एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है. सिमिलरली द ओमेगा और द रेडियल सॉरी द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब बेसिकली ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके कर्विलिनियर मोशन में पहले पार्टिकल यहां था, फिर पार्टिकल यहां आया, फिर यहाँ आया, 3-4 पोजीशंस चेंज कर रहा है, वो कर्व में जा रहा है. तो आपका पार्टिकल के ट्रेवल के दौरान ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो एंगुलर मेजरमेंट थीटा है वो कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म ओमेगा. तो बेसिकली ओमेगा इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देयरफॉर वी कैन आल्सो कॉल इट एज थीटा डॉट. तो ये इसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग हो गए. तो अगर आपसे कोई ऐसे
आउट ऑफ द ब्लू एक क्वेश्चन दे दे, आर डी थीटा बाई डी टी क्या है? व्हाट इज आर डी थीटा बाई डी टी? बताओ, एनीबॉडी? बोलो, anybody who knows the answer to this question, what is r into d theta by dt? V कौन सा v? VT linear velocity. This is the transverse component of velocity. क्यों? क्योंकि d theta by dt is nothing but omega, omega and you know that r into omega is always the transverse component of velocity in any curvilinear motion. ठीक है, उसी तरीके से कोई आपको ट्रिक करने के लिए ये भी दे सकता है, व्हाट इज आर थीटा डॉट? दिस इज द सेम थिंग, ठीक है, ये भी आर थीटा डॉट लिखें तो भी दिस इज ऑल्सो बीटी। ओके, तो अपन ने वेलोसिटी के दो फॉर्मूले आई होप अच्छी तरह से याद कर लिया। अभी यहाँ पर दिखा दिया और अब आपको याद करना है इसको। सो व्हेन यू गो टू योर एग्जामिनेशन यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूले। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, ये रट लिया हमने। नाउ लेट अस कम टू एक्सेलरेशन। जिस तरह से वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स होते हैं उसी तरीके से एक्सेलरेशन के भी अपन ने डिराइव किए थे। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन? इसके लिए आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू एंड डिस्कस्ड विथ यू दैट देयर आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर दिस, लेकिन जो किताबों में एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपको याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। And I had given you a very, very short and simple method to remember the formats of these two. So I am going to reproduce the ones that I told you to remember, not the ones that the textbooks are giving. Textbook में जो दे रखा है वो आप लोगों को याद करना बहुत मुश्किल है। आप ट्राई करके देख लीजिए, go to any textbook, go to any internet resource, आपको एक आसान फॉर्मूला नहीं मिलेगा। So what is the easy formula which is equivalent to the formula of textbooks? वो फॉर्मूला ये है, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में, तो सबसे पहला तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए भाई, ये तो पता है ना। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन जनरल। तो अगर रेडियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात तो ये होनी चाहिए कि रेडियल वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, दैट इज फॉर श्योर। But in our derivation we found that there is an additional term that comes with it. तो सिर्फ dvr by dt कर देने से काम खत्म नहीं हो जाता, क्या करना पड़ेगा? एक माइनस लगाओ, introduce an omega, multiply it with the other counterpart of velocity, that is transverse component of velocity. So now this is the formula that you have to remember, that the radial component of acceleration is dvr by dt minus ओमेगा वीटी। अब उसी तरीके से अगर मैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना चाहूं तो उसका शॉर्टकट क्या है? तो द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन से इज, एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो मतलब सीधे सीधे वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव तो होगा ही होगा। अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो ठीक है, मैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट there is an additional term in this one also, लेकिन अब की बार माइनस की जगह प्लस आएगा, ओमेगा एज इट इज आएगा, और vt की बात हो रही थी तो vt का जो काउंटर पार्ट है दैट इज vr। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में ओमेगा vr ऐड करना है, रेडियल एक्सेलरेशन में ओमेगा vt माइनस करना है। बस इतना सा एडिशनल कंटेंट आपको याद रखना है, बाकी ये चीज तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। Acceleration in r direction is velocity in r direction का डेरिवेटिव, acceleration in t direction is velocity in t direction का डेरिवेटिव। तो ये चीज तो बाय डिफॉल्ट आपकी आती है, बस आपको दोनों ar और at में ये याद रखना है, ar में माइनस ओमेगा वीटी, at में प्लस ओमेगा vr, बस। तो आई होप दैट with this format it is easy for you to remember। और अपन आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें अपन ये चार फॉर्मूले यूज करेंगे।
यानी कि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, दीज आर द 4 फॉर्मूले दैट यू रिक्वायर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. Equation number 1, equation number 2, which give the radial and transverse velocities. Equation number 3 and equation number 4, which give the radial and transverse components of acceleration. ठीक है, चलो अब इसको अपन यहाँ पे रख लेते हैं. Let us take it. एक काम करते हैं, in order to remember them, इसको थोड़ा सा सुंदर सा बना के एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, ताकि अपन न्यूमेरिकल में इसको देख देख करके काम चला लें अपना. अभी बाद में आपको याद तो रखना ही है. ओके, नाउ वी हैव आवर फॉर्मूला हियर. यहाँ पर सेट करके रख दिया. अब अपन कभी भी फॉर्मूला रिविजिट करना हो न्यूमेरिकल के दौरान तो यहाँ पर आकर के देख लेंगे. वी आर, वी टी, ए आर, ए टी, 4 फॉर्मूले आ गए. नाउ लेट अस गो एंड सॉल्व सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स. फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये आपके नोट्स में मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है. क्वेश्चन फ्रॉम डीपी शर्मा बुक. An insect crawls at a constant speed u along the spoke of a bicycle wheel. तो फिगर में देखिए बाइसाइकिल व्हील दे रखी है और आपका इंसेक्ट ये रहा. ये इंसेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से आपके साइकिल का जो एक स्पोक होता है, जो मेटल के जो जो आपके तार लगे होते हैं बाइसाइकिल की व्हील में, आपने देखे होंगे, उस एक तार पे एक कीड़ा सेंटर से स्टार्ट होकर के कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि यू वेलोसिटी से रेडियली बाहर की तरफ जा रहा है. ठीक है, और क्या बोल रहा है ये? द व्हील इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. यानी कि ये जो व्हील रोटेट कर रहा है ऐसे, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है. यानी कि ना तो व्हील में एक्सेलरेशन है ना डिसेलरेशन है, कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट इन रेडियल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? ये कौन सी डायरेक्शन में बात कर रहा है? ये विच डायरेक्शन? दिस इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन. यानी कि आपको निकालना है ए सफिक्स आर और ए सफिक्स टी. ये दो एक्सप्रेशंस निकालने हैं आपको. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसके मोशन की बात करें तो ये कीड़े का जो मोशन होगा वो ऑलमोस्ट ऐसा दिखेगा आपको, अगर आप सिर्फ कीड़े के मोशन की बात करें तो. और आपका व्हील कैसा है? व्हील ऐसा है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि व्हील तो यहाँ पर है और पाथ ऑफ इंसेक्ट ऐसा कैसे हो गया? वो ऐसा है क्योंकि व्हील घूम भी रही है. देखो कीड़ा जो है 1 सेकंड के बाद कहाँ मिलेगा? वो यहाँ मिलेगा. 2 सेकंड के बाद कहाँ मिलेगा? वो यहाँ मिलेगा. 3 सेकंड के बाद कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ भी जा रहा है और व्हील घूम भी रही है. तो ये दोनों तरह के मोशन को मिलने के साथ में कीड़े का जो पाथ होगा दैट विल बी समवॉट लाइक दिस. ठीक है, और व्हील तो वहीं की वहीं घूम रही है कांस्टेंट ओमेगा से. सो एनीवे, आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू प्रॉपरली लर्न हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर ए आर एंड ए टी. ठीक है, तो अपन चलते हैं. अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे डिराइव करें. नाउ सबसे पहले ए आर पे अपन आते हैं. ए आर का फॉर्मूला छापो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए आर? अभी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप विजिट करो इस पे. dvr over dt minus omega vt.
ये यहाँ पे दिख रहा है dvr by dt माइनस ओमेगा vt। तो इसको तो पहले एज इट इज लिख लो, dvr by dt माइनस ओमेगा vt। अब ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब गिवन डेटा में क्या क्या चीजें हैं, रेडियल डायरेक्शन में जो कीड़ा चल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, सॉरी यू, एंड दिस इज कांस्टेंट। और ओमेगा की स्पीड से पहिया घूम रहा है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ वी आर क्या चीज होती है। अब अपन को इसमें फॉर्मूले में यूज करना है ना, आपको वी आर का डी बाई डी टी चाहिए, ओमेगा चाहिए, वी टी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताओ वी आर का क्या फॉर्मूला है। वी आर अगर आपको याद हो तो इट इज डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब इस फिगर को देखो, ये बोल रहा है कि कीड़ा जो है वो रेडियल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी u से चल रहा है। ये देखो स्पीड इज u। तो मेरे को ये बता दो डी आर बाई डी टी की क्या वैल्यू ली जा सकती है। व्हाट शुड आई टेक डी आर बाई डी टी एज? du upon dt, du upon dt। डी यू अपॉन डी टी तो एक्सेलरेशन नहीं हो जाएगा क्या? यू तो वेलोसिटी है, तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे ले रहे हो? क्वेश्चन को देखो ध्यान से और उसके बाद मेरे को बताओ इसका आंसर। आई वांट द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी, दिस इज व्हाट आई वांट। यू सर, रेडियल डायरेक्शन आर जो है वो किस गति से चेंज हो रहा है टाइम के साथ? क्या ये डेटा आपके प्रॉब्लम में गिवन है कि नहीं है, ये देख के बता दो आप। सर यू सर, Yes, dr over dt is equal to u। इट इज यू। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप नहीं समझोगे तो आगे के क्वेश्चन और भी टफ लगेंगे आपको। भाई आपको बता रखा है द इंसेक्ट इज क्रॉलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड u अलोंग द स्पोक ऑफ द बाइसाइकिल, यानी कि वो रेडियल डायरेक्शन में चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी u से। तो ये u ही हो गई ना डी आर बाई डी टी, दिस इज डी आर बाई डी टी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब अपन इसको जाकर के स्टोर कर लेते हैं। सो योर वेलोसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन इज u, ये पता लग गया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आपको चाहिए अब डी वी आर अपॉन डी टी, यानी कि डी ऑफ u बाई डी टी, क्योंकि वी आर आपका u हो चुका है। अब इसका इसका आंसर बताओ, वापस से फिगर पे जाओ, व्हाट इज डी यू बाई डी टी नाउ? फर्स्ट लाइन ऑफ प्रॉब्लम एक बार पढ़ लो, उसके बाद इसका आंसर दो। इंसेक्ट क्रॉल्स एट कांस्टेंट जीरो स्पीड, सर, डी यू बाई डी टी कितना हो गया? जीरो। इट इज जीरो। क्यों जीरो हुआ, बताओ रीजन बताओ। बिकॉज सर देयर इज नो चेंज इन स्पीड। देयर इज नो चेंज इन स्पीड, u कांस्टेंट है, ये दे रखा है प्रॉब्लम में, u इज कांस्टेंट। तो अगर u कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करोगे तो जीरो ही आएगा वो। तो डी यू बाई डी टी इज जीरो। सो नाउ गो बैक टू योर वर्कशीट हियर। तो आप यहां पर डी वी आर बाई डी टी निकालना चाहते थे, ए आर का, वो कितना आ गया? डी वी आर बाई डी टी के लिए पहले आपने वी आर निकाला, पता किया कि वो u है, फिर आपने वी आर की जगह पे u रख दिया और डी यू बाई डी टी पता किया कि जीरो है। सो दिस होल कंपोनेंट इज जीरो।
अब आपका AR कितना रह गया? नाउ व्हाट रिमेन्स इन AR इज माइनस ओमेगा VT। चलो ठीक है, ओमेगा गिवन है क्या प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम देखो और बताओ, ओमेगा गिवन है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या है? इसकी जरा डिटेल बता दो। कांस्टेंट है सर। ओमेगा इज अ कांस्टेंट एंड इट इज गिवन एज ओमेगा इटसेल्फ। इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, इन्होंने ओमेगा जो है ओमेगा ही दे रखी है बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को यूज करने के लिए बस गिवन डेटा ओमेगा ही हो गया। तो अब ओमेगा तो ओमेगा खुद है। चलो, VT क्या है? VT का फॉर्मूला बताओ पहले तो। आर ओमेगा, आर ओमेगा, इट इज आर ओमेगा। ठीक है, अब R तो आपकी रेडियल डिस्टेंस हो गई, ओमेगा आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आपका फाइनल वैल्यू क्या हो गया इसका? ओमेगा स्क्वायर आर माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर। फाइनल आंसर इज माइनस R ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसमें R कांस्टेंट है, R क्या चीज है? R इज द रेडियल डिस्टेंस, रेडियल और डिस्टेंस। R के अंदर अपन को कोई वेरिएशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सिंपल R लिखा हुआ है, तो आपको भी R ही लिख देना है। और ओमेगा कांस्टेंट दे रखी है, तो अब इसके अंदर और कोई प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है। सो योर फाइनल आंसर इज द रेडियल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज R ओमेगा स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। अब प्रॉब्लम आपसे और क्या मांग रही है? फाइंड एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। ठीक है, तो चलो वापस से अब प्रॉब्लम शीट पे आते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा और कंफर्म्ड हो गए हैं फॉर्मूले के यूसेज के साथ, तो अब मैं कम हेल्प करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप खुद सॉल्व करें। VT का फॉर्मूला बताओ, किसी को याद है तो। सॉरी, VT नहीं, AT, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना अपन। एक्सेलरेशन इन dvt over dt प्लस ओमेगा यहाँ vr। पे प्लस आएगा और ओमेगा इंटू VR आएगा। dr। ठीक है, अब वापस से अपन चलते हैं, इन चीजों की तलाश करते हैं। भाई dVT by dt है, तो पहले मुझे VT को पकड़ना पड़ेगा। तो अब बताओ कि VT का क्या फॉर्मूला है? आर ओमेगा, R ओमेगा है। ठीक है, VR का क्या फॉर्मूला है? वी आर डी आर dr over dt। इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में अपन को U दे रखी थी। यस सर। ठीक है, तो अब ये दो चीजें मेरे को पता लग गई, VT R ओमेगा है और VR U है। इन चीजों को मैं अपने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मेरे को मिलता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ R ओमेगा। ठीक है, प्लस U ओमेगा। सही है क्या? देख के बता दो आप जो मैंने लिखा है। यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप लोगों को प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो पता ही है, R और यू ओमेगा। इनटू इसका जल्दी से यू टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जल्दी बताओ। आर डी ओमेगा बाय डी टी प्लस ओमेगा डी आर बाय डी टी। बिल्कुल सही, प्लस यू ओमेगा यही रखा रहेगा। अब अपन इसकी तहकीकात करते हैं, ये जो अपने हाथ में आ गया है इसको सॉल्व कर ले तो अपना ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट कैन आई से अबाउट डी ओमेगा बाई डी टी? अल्फा सर। अल्फा तो है, लेकिन इसकी वैल्यू प्रॉब्लम से निकाल के लाओ। चलो सिर्फ इतना सा फेस पढ़ लो आप। 0 सर। ये मैंने जो सर्कल किया है इससे पता लग गया कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 जीरो। जीरो मल्टीप्लाइड बाय आर कितना हो गया? 0। जीरो। ये पूरा कंपोनेंट ही चला गया। तो अब आपके पास में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज ओनली दिस मच। ठीक है, ओमेगा तो कांस्टेंट है ही। व्हाट इज dr by dt? u सर। इट इज u अगेन।
तो आपकी फाइनल वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज u ओमेगा प्लस u ओमेगा इक्वल टू 2u ओमेगा. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, आप आंसर्स चेक कर लीजिए. लेट अस गो एंड चेक द आंसर्स. ये देखो, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर था, ये अपन ने निकाल लिया. सी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. एंड देन अच्छा, इसमें सॉल्व एग्जांपल में जो इन्होंने फॉर्मूले यूज किए हैं, ये बुक के फॉर्मूले यूज किए हैं. ठीक है, तो इसलिए आप सॉल्व एग्जांपल को जाकर के देखोगे तो हो सकता है शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो. अपन ने अपने फॉर्मूले यूज करके सॉल्व कर लिए. अपन को इससे मतलब नहीं किताब में क्या दिया हुआ है, अपन को तो करेक्ट और सबसे आसान तरीका याद रखना है. ठीक है, एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 2u ओमेगा, ये भी आपने अभी निकाल लिया. दिस इज योर आंसर, 2u ओमेगा. ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम को देखो. इट इज सेइंग द मोशन ऑफ स्लाइडर C. ये देखो कैसे है, यहां पर एक हिंज है. दिस इज द फ्लोर. फ्लोर पे हिंज से एक रॉड को फिक्स कर दिया है. हिंज का मतलब कब्जा होता है, और कब्जे का मतलब क्या है? दिस रॉड कैन रोटेट लाइक दिस. आगे पीछे इसको रोटेट करा सकते हो. तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल से इस रॉड का जो एंगल थीटा है, ये टाइम के साथ में चेंज हो रहा है. सो दिस रॉड इज रोटेटिंग विथ सम एंगुलर वेलोसिटी. ये देखो, रॉड का रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, और इस रोटेशन का जो ओमेगा है वो अभी तो फिलहाल ओमेगा दे देते हैं, क्या पता एक्सेलरेशन है नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग. ठीक है, अब उसके साथ में देयर इज अ स्लाइडर ऑन दिस रॉड. ये सी जो है, ये सी एक ऐसा कंपोनेंट है. ये देखो, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ. दिस सी इज अ कंपोनेंट समथिंग लाइक दिस. It has a hole here, and this hole is going throughout to the other side. ठीक है, और इस होल में से ये रॉड ऐसे इंसर्ट कर रखी है, और इन दोनों के बीच में हल्का सा क्लियरेंस दे रखा होगा, जिसके कारण कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये इस रॉड पे आगे पीछे स्लाइड कर सकती है. क्या आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई क्या इस प्रॉब्लम की? So this slider is capable of moving sir. in the radial direction along this rod, but at the same time the rod is capable of rotating in either direction. ये इस प्रॉब्लम की कॉन्फ़िगरेशन है. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो वेरिएबल ले लिए. दे हैव टेकन टू वेरिएबल्स, r एंड थीटा. ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, दैट r is a function of time and it changes with respect to time as follows. यानी कि r is equal to 3t minus t square के रिलेशनशिप के साथ में ये जो स्लाइडर है, ये इसके ऊपर ऐसे मूव कर रहा है. तो अगर आप ये पता करना चाहें कि 0 सेकेंड पे तो ये स्लाइडर यहां पे था, अब 1 सेकेंड पे स्लाइडर कहां होगा, तो इसकी रेडियल डिस्टेंस आपको इस इक्वेशन से पता लगेगी. व्हेन यू पुट t is equal to 1 here and t is equal to 1 here, तो ये आ जाएगी 3 minus 1 2 मीटर. तो यानी कि अगर ये ओरिजिनल पोजीशन इसकी यहां थी, तो 1 सेकेंड के बाद ये इस पोजीशन से 2 मीटर दूर नजर आएगा आपको. तो r का रिलेशनशिप दे रखा है, और उसी तरीके से ये जो रॉड है, द रॉड इज रोटेटिंग एंड चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन विथ थीटा, और थीटा का रिलेशनशिप भी टाइम के फंक्शन के रूप में दे रखा है कि अगर 0 टाइम पे थीटा 0 थी, यानी कि ये रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल था, तो 1 सेकेंड पे 2 रेडियन पे मिलेगी, 2 सेकेंड पे 4 रेडियन पे मिलेगी, 3 सेकेंड पे 6 रेडियन पे मिलेगी. तो ये रॉड की जो एंगुलर लोकेशन थीटा है, ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वो यहां पर दे रखी है आप. ठीक है, r and t are in meters. Sorry, r is expressed in meter, t is in second and theta is in radians. अब आपको वापस से वही काम करना है. Find the radial and transverse acceleration of the slider.
व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि आपको स्लाइडर ये है c, इस c कंपोनेंट की रेडियल एक्सेलरेशन ar और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन at पता करनी है। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, सो वंस अगेन आई विल ओनली गाइड यू। अपन अपनी वर्कशीट पे इसकी डेटा को लेके चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, और बाकी का काम आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, सो प्लीज बी रेडी विद अलर्ट माइंड। r 3t माइनस टी स्क्वायर है, ये ले लेते हैं अपन। r इज गिवन एज 3t माइनस टी स्क्वायर, ये पहले इक्वेशन। थीटा इज गिवन एज 2t। क्या क्या पता करना है? ar पता करना है और at पता करना है। कब? when t is equal to 2 seconds। तो इसमें आपको इक्वेशंस नहीं पता करनी, आपको रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस की एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज पता करनी है जब 2 सेकंड का टाइम गुजर गया हो, यानी कि t को 2 पुट करना पड़ेगा आपके जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे। सो ar कॉमा at एट t इज इक्वल टू 2 पता करना है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं विथ रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ar का फॉर्मूला वापस से रिपीट करें। सही फॉर्मूला लिखा है क्या मैंने? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अपन को चाहिए सबसे पहले तो dVr अपॉन dt है, तो पहले अपन को Vr को टारगेट करना है। तो टेल मी व्हाट इज Vr, फॉर्मूला ऑफ Vr बताओ पहले तो। व्हाट इज Vr? dr over dt। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये आप गिवन इंफॉर्मेशन से पता कर सकते हो क्या? यस सर। बता दो कितना है। 3 minus 2t। आपको r की रिलेशनशिप दे रखी है, तो सीधे सीधे r का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। व्हाट इज dr by dt यूजिंग दिस रिलेशनशिप? दिस कम्स आउट एज 3 minus 2t। तो दिस इज योर Vr मिल गई अपने को। ठीक है, अब ar पता करने के लिए पहली टर्म क्या है? Vr का फिर से डेरिवेटिव चाहिए आपको, यानी कि dVr अपॉन dt है। तो अगर आपको Vr मिल चुका है तो ये बताओ व्हाट इज dVr अपॉन dt? -2। इट इज सिंपली -2। ठीक है, तो यानी कि ar का ये जो कंपोनेंट है ये मिल गया आपको, दिस इज सिंपली इक्वल टू -2। तो अब ar को वापस से थोड़ा सा फ्रेश फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो नाउ माय ar इज -2 माइनस ओमेगा bt। अब यहां से शुरुआत करते हैं। अब vt लेके आओ। व्हाट इज vt? vt का फॉर्मूला बताओ। r ओमेगा। इज r ओमेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा रीराइट कर लेता हूं। दिस विल बी ar इज इक्वल टू -2 माइनस r ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ r गिवन है क्या प्रॉब्लम में? r इज गिवन एज 3t माइनस टी स्क्वायर। तो इसको एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं अपन। r इज 3t माइनस टी स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या मैं ओमेगा को d थीटा over dt। d थीटा अपॉन dt लिख सकता हूं? और थीटा आपके प्रॉब्लम में गिवन है, इट इज इक्वल टू 2t। तो व्हाट इज d थीटा बाय dt? 2। इट इज सिंपली 2। तो ओमेगा आपको पता लग गया, गिवन इंफॉर्मेशन से 2 है, तो ये ओमेगा की वैल्यू 2 लिख देते हैं। अब अपन वापस से इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं विद द न्यू इंफॉर्मेशन नाउ। तो मेरे को मिला ar इज इक्वल टू -2 माइनस r की जगह पे लिख लेता हूं 3t माइनस टी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं ओमेगा के स्क्वायर के साथ।
यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को सिर्फ ये निकालना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए आर एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यानी जब मैं टाइम को 2 सेकेंड रखूं तो ए आर की वैल्यू कितनी आएगी। ये कैसे आता है, आई विल सिंपली पुट टी इज इक्वल टू 2, सो दिस इज -2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। -10. So the answer of radial acceleration is -10. The unit is meter per second square. This is your first answer. इसके क्वेश्चंस देख रहे हो आप, मुश्किल नहीं है, आसान ही है, लेकिन आपको सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए। एनीवे, अब अपन ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये आप खुद निकालो, राइट आउट। टेक सम टाइम, 5 मिनट ले लो, 5 मिनट में इसको खुद करके बताओ। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फॉर्मूला ले लीजिए। प्लस Four in bracket 3 minus 2t. यस, ये आंसर आना चाहिए। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्सेलरेशन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज 4 into 3 minus 2t, and when you evaluate this at t is equal to 2 second, what will you get? 4 -4. 3 minus 4, that is -4 meter per second. मीटर। This is your answer. ठीक है, तो फाइनल अपने आंसर क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन इज -10 meter per second square and transverse acceleration is -4 meter per second square. Let us check our answers. ट्रांसवर्स का -4 आ रहा है, रेडियल का -10 आ रहा है। ठीक है, नाउ
2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे। हालांकि फॉर्मेट वही है, इसका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर जानबूझ करके नहीं रखा है। सो आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट आउट। इसमें मैं सिर्फ एक हिंट देता हूँ, हालांकि नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कवर कर लेंगे, डोंट वरी, वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। आपसे टोटल एक्सेलरेशन मांगा जा रहा है इसमें। नाउ देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल नाउ यू हैव लर्नड दैट देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ। तो अभी तक अपन ने जितना भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करी, अपन यही कहते आ रहे हैं कि वी आर होता है और एक वी टी होता है। बट नाउ यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट द रेडियल डायरेक्शन एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में आपको वी आर मिला है और वी टी मिल गया है, एंड इफ somebody asks you what is the total value of velocity or the real time value of velocity, not in terms of radial and transverse component, दोनों का रिजल्ट है। तो आपको इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और चूंकि ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकालना भी बहुत आसान है। यू सिंपली से दैट वी टोटल मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी टी का स्क्वायर। कहानी खत्म। This is all that you have to do. So you independently calculate VR using the formula, you independently calculate VT using its formula, and eventually you can calculate the total velocity or the final velocity as the resultant of these two. Similarly, the same story goes for the total acceleration. Individually acceleration in radial direction निकालो, उसका स्क्वायर करो। इंडिविजुअली ट्रांसवर्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालो, उसका स्क्वायर करो, एंड इवेंचुअली यू टेक एन अंडर रूट। इस तरीके से टोटल एक्सेलरेशन और टोटल वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज ट्राई आउट दीज 2 प्रॉब्लम्स। ये मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से करो, एरर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल मैं इसको डिस्कस आपके साथ जरूर कर लूंगा। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड ओनली देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो आज जो आपने सीखा आपको क्लियर हुआ सर? इज द लर्निंग ऑल क्लियर टू यू? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आई विल टेक द अटेंडेंस एंड लेट यू गो। अटेंडेंस सर मार्क्स कब तक मिलेंगे? बेटा अभी मैंने कॉपीज चेक करना भी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी बहुत बिजी पीरियड चल रहा है हमारा, ये एनबीए और नैक की एक्रेडिटेशन के डेटा कलेक्शन में और इन सब चीजों में वी आर ऑल बिजी। बट आई विल और सर डेफिनेटली डू इट। प्रैक्टिकल कब से है? प्रैक्टिकल आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन? हुई नहीं है क्या? नहीं सर।